Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How have you been? How was the long weekend? Fine. Okay. I'm your trainer, Hafiz Muhammad Aqib Safi Qasmi, and I welcome you all on this wonderful learning platform, English proficiency classes started by Skillford and Siyasat. As I promised last week, today we are going to learn silent letters in alphabets. Okay, in words. यानी एक वर्ड्स में बाज़ वक़्त वर्ड साइलेंट रहता है, जैसे एक वर्ड है ऑनेस्ट, ईमानदार, तो लिखने में हम क्या करते हैं उसको HONEST, लेकिन पढ़ते H नहीं पढ़ते, हम क्या बोलते हैं ऑनेस्ट बोलते, क्या बोलते हैं ऑनेस्ट. सो वी राइट इन अ डिफरेंट मैनर एंड वी प्रोनाउंस इट इन ए डिफरेंट मैनर. सो टुडे फ्रॉम A to Z, मतलब वी हैव 26 लेटर्स इन अल्फाबेट्स. जो A to Z जितने लेटर्स है, हर एक के जितने कॉमन वर्ड्स है जिसमें ये साइलेंट आते हैं, इंशाल्लाह we'll discuss all of them today. चलिए, so without any further ado, let's get started quickly. So the topic today is silent letters. Okay, shall I move on? So we'll start with A. हम A से शुरू करेंगे. The first one here is silent letter is A. The first word I gave here is, how do you pronounce it? Diamond. Okay, nobody says diamond. Diamond कोई बोलते क्या? Okay, here A is silent. Okay, diamond. And one more thing very important, we are not going to just discuss the words today. What happened? Is everything okay? Don't talk. Sit down, let it be there. Okay, don't talk. Where was I? Diamond. So today we are not going to learn the words. खाली words नहीं पढ़ रहे. I wanted to teach you more. हम क्या करेंगे? With words, I'll give you examples. Examples दूंगा मैं. And in every single example, you will get something new to learn. आप हर एग्जाम्पल में कोई ना कोई एक नई चीज सीखेंगे इंशाल्लाह. डू यू गेट मी? सो वी विल हैव अ वर्ड, एक वर्ड आएगा जिसमें एक लेटर साइलेंट रहेगा, उसके बाद एक एग्जाम्पल आएगा जिसमें आपको इंग्लिश के और टॉपिक्स आप सीखेंगे उसके अंदर. शैल आई मूव ऑन? एंड टुडे वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिपीटेशन. आज क्या करना है हमको? रिपीट करना है. ओके, एवरी डे व्हाट डू वी डू? वी राइट एंड वी सेंड आंसर्स. यूजुअली आवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स दे सेंड आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. But today we are not going to write anything. Today we are going to repeat everything. तो जब भी एक वर्ड आएगा, फिर एग्जाम्पल आएगा, तो you are supposed to repeat after me, louder and clear. Do you get me? So be ready because today you have to invest lot more energy. आज बहुत एनर्जी दिखाना और बहुत बात करना है आपको. Shall I? Yes. The first word, diamond. Diamond. The example is diamond cuts diamond. Diamond cuts diamond. Diamond cuts diamond. Diamond cuts diamond. And in most example, I gave some proverbs and good sentences. And it happens to be one idiomatic expression. एक expression जिसका मतलब ये है, उर्दू में जैसा बोलते कि लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है. तो in English we say diamond cuts diamond. Means अगर आप किसी को हराना है जो एक लेवल का है, तो आप क्या करना, उसके लेवल के आदमी को लाना आप. If you beat a postgraduate, you need to bring a postgraduate to compete with him. You cannot challenge a postgraduate with undergraduate. Do you get me? कोई भी फील्ड में कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई फाइटर है, कोई रेसलर है, तो उसको हराने के वास्ते वो लेवल का, वो कैलिबर का, वो टैलेंट का, वो पोटेंशियल का आदमी लाना, तभी क्या था, मजा आता. So diamond cuts diamond. लोहा लोहे को काटता है. Just repeat after me. Diamond. Diamond. Diamond cuts diamond. Diamond cuts diamond. Second word we have here is diaper. Diaper. Everybody knows it. छोटे बच्चे जो डायपर पहनते, इसमें डायपर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? डायपर. इसमें और एक चीज सीखने की ये है कि अक्सर लोग डायपर बोलते. Everybody tells it. It's not a new word, not an alien word for you. But the problem is when they sit to write diaper, how do they write it? They write DIPER. Because they are used to pronouncing the word in that manner, so they follow the pronunciation. वो जो sound है उसको follow करके इस पर mistake कर देते. Okay, we need to know in diaper we have an extra A that happens to be silent. Diaper में एक A आ रहा जो क्या है, silent रहता. अब चलिए थोड़ी इंग्लिश सीख लेंगे यहाँ पे. अब जब बच्चा डायपर पहनता, usually they defecate, मतलब बच्चे डायपर खराब कर देते. Okay, they टॉयलेट करते उसके अंदर, तो हम कैसा बोलेंगे उसको इंग्लिश में? आपको ये बोलना है कि बच्चा टॉयलेट कर दिया. ओके, वी हैव वेरी सिंपल वेरी गुड एक्सप्रेशन. टेल मी, हम मिट्टी क्या बोलते हैं? मिट्टी को
सॉइल बोलते हैं। ओके, सॉइल मिट्टी को बोलते हैं और सॉइल की कई मीनिंग है। सॉइल का मतलब कपड़े खराब करने को सॉइल बोलते हैं। ओके, आप कपड़े मैले कर लिए तो यू हैव सॉइल्ड योर क्लोथ्स, यू हैव सॉइल्ड योर क्लोथ्स, मतलब आप कपड़े क्या कर लिए, खराब कर लिए। इफ समवन सॉइल्स द डाइपर, समझ गया, अगर कोई डाइपर सॉइल कर दिया मतलब डाइपर खराब कर दिए, दे फिल द डाइपर। ओके, नाउ इसी तरह पानी नहाने को टेक अ बाथ बोलते हैं, और BATHE बेथ, उसका मतलब भी नहाना भी नहलाना भी है किसी को। ओके, बेथ हिम, उनको नहला पानी, छोटा छोटा पढ़ना जरा अपन। सो दिस टू वर्ड्स यू विल लर्न इंशाल्लाह। द बेबी हैज सॉइल्ड हिज डाइपर अगेन, चेंज इट एंड बेथ हिम। डू यू गेट मी? कि बच्चा फिर से क्या करा, डाइपर खराब कर लिया, डाइपर को चेंज करके बच्चे को पानी नहलाइए। नहलाना काफी है, पानी की भाई, ऑब्वियसली दूध तो नहलाते अपन। तो बात उर्दू में कहते हैं रिडंडेंसी बोलते, क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी, अल्फाज को गैर में रिपीट करते। चलिए, डाइपर, द बेबी हैज सॉइल्ड हिज डाइपर अगेन, चेंज इट एंड बेथ हिम। द बेबी हैज सॉइल्ड हिज डाइपर अगेन, चेंज इट एंड बेथ हिम। विथ फुल एनर्जी, आई वांट एंथुसियाज्म, एकदम जोश से खरोश से पढ़ना अपना। ओके, डोंट बॉदर अबाउट राइटिंग, आफ्टर क्लास आई गिव यू टाइम टू राइट, and our online viewers, they can write after class as well. I hate this thing. Okay, don't get offended. See, one time we should do one thing only. That's my principle. See, when we eat something, we do not do two things simultaneously, concurrently. We don't eat with one hand and we drink with the other hand. Okay, we eat, we stop, then we drink. Have you ever seen someone, okay, no, devouring something? Nobody does it. So I want, if you are reading, focus on reading only. If you are writing, focus on writing only. Okay, one thing at a time, one thing at a time. So don't bother about writing. Or online students, they have the opportunity after class, they can sit and they can repeat the class and write all the sentences. Okay, and you, I will repeat after class all, you can write. And some people are having a hard time understanding the meaning. बाद लोगों मीनिंग समझने मुश्किल हो रही। सी, आई कैन नॉट राइट द मीनिंग विद एवरी सेंटेंस, बाद मुश्किल हो जा रहा मीनिंग में, तो मैं ओरल बोल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। सो एज आई टेल यू, वॉच द वीडियो 2-3 टाइम्स, मीनिंग भी आते, समझ में भी आता। ओके, आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ बोथ दीस सेंटेंसेस। शैल आई मूव ऑन? थर्ड वर्ड वी हैव हियर विथ ए साइलेंट, हाउ डू प्रोनाउंस इट? हाँ, ऑटोमेटिकली नहीं बोलना, कल्ली नहीं बोलना आखिर का। ओके, क्ली, क्या बोलेंगे? क्ली, automatically, logically, physically, biologically, artistically, thoughtfully. Okay, ये जो आखिर में लिया था ना, उसको कल्ली नहीं बोलना, मजा नहीं आता फिर में। Okay, automatically, repeat after me, automatically, automatically, logically, physically, psychologically, biologically. Okay, और भी है, जहां भी आखिर में CALLY आएगा तो क्ली बोलना, क्या बोलना? क्ली, कल्ली नहीं बोलना। A is completely silent here. Okay, let's read a sentence. These doors open and shut automatically. Yes, have you seen electronic doors? Okay, when you approach them, जब आप करीब होते तो they open automatically, they shut automatically. खुद से खुलते, खुद से बंद हो जाते। Okay, so these is the angle correct? Because keep it a little front, thoda करीब में. You manage the screen there because Masood is absent today. Shall I move on? Next word. We have got 6-7 words with A. Then we'll move on with B. How do you pronounce it? Baggage. Baggage नहीं जी. Okay. Gauge नहीं बोला, baggage. ये जो word है आखिर में AGE, अनसर पढ़ाए थे हमारे कि यूजुअली AGE जो है हमेशा इज बोलना, क्या बोलना अपन? इज, बैगेज, लगेज, कॉलेज, विलेज, ये विलेज, कॉलेज, बैगेज, लगेज नहीं बोलना है, समझ में आपको? एकदम शॉर्ट, क्या बोलना? इज बोलना। लेकिन ये गलती ना करना आप लोग, व्हाट्स योर इज रे पूछना वहां पे जाके, वो व्हाट्स योर एज है, वो क्या है? वो AGE कंप्लीट एज है, वो AGE क्या है? कंप्लीट एज है। लेकिन वो एज जब किसी के साथ मिलके आता, सफिक्स बनता, क्या बनता? सफिक्स बनता किसी वर्ड का, आखिर में आता, सेकंड सिलेबल बोलते, क्या बोलते हैं उसको? सेकंड सिलेबल।
ओके, तो सेकंड जब सिलेबल बनेगा वो तो उसको इज पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? इज, 2 वर्ड्स को छोड़ के। कितने वर्ड्स छोड़ के? 2 वर्ड्स को। स्पेसिफिकली इन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन 2 वर्ड्स वेरिंग वी लेंथन दिस, ओके, वी स्ट्रेस दिस AGE। एक है हमारे पास गराज, क्या है? आप गैरेज ही बोल सकते हैं, गराज अच्छा वर्ड है। और एक क्या है? मसाज। गराज एंड मसाज, ये दोनों को आप क्या करेंगे? एज खींचेंगे, बाकी पूरों में इज। तो मैसेज अलग है, मसाज अलग है, ओके, लगेज अलग है, गराज अलग है। So these 2 words I know wherein you need to stress on second syllable, you need to lengthen it. Say garage, massage. बाकी जो वर्ड है इज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इज। बैगेज, बैगेज, लगेज, यूसेज, इमेज, इमेज नहीं बोलना, इमेज। ओके, सी द एग्जांपल। My baggage was ticketed at the airport. मतलब ऐसा बोलना चाहते कि दे टुक टिकट फॉर बैगेज के बजाय डायरेक्ट बैग से टिकट कर दिया अपन। समटाइम्स वी कैन यूज इट, ओके। आई यूज टिकट एज ए वर्ब हियर। टिकटिंग, टिकटेड बोला मैं। एक टिकट तो क्या है? नाउन है ना भाई, एज ए वर्ब। तो अभी ऐसा बोलते हैं। टैक्सी एक वर्ड है भाई, ओके। आई टुक अ टैक्सी एंड वेंट टू एयरपोर्ट। आई टुक अ टैक्सी एंड वेंट टू एयरपोर्ट। क्या इसके जगह ये बोल सकते हैं आप? आई टैक्सीड टू द एयरपोर्ट। आई टैक्सीड टू द एयरपोर्ट। टैक्सी का वर्ब कर सकते हैं ऐसा। मॉडर्न इंग्लिश में अक्सर नाउन्स को वर्ब्स कर देते, अक्सर नाउन्स को वर्ब कर देते हैं। अनस सर बोले थे एक मर्तबा क्लास में कि फादर बाप को बोलते ना, फादर का मतलब बाप, फादर नाउन है, बाप बनने को भी फादर बोलते। आपको यह बोलना है माय ब्रदर फादर्ड अ बेबी बॉय। डू यू गेट मी? माय ब्रदर फादर्ड अ बेबी बॉय। ये लैंग्वेज का बहुत एडवांस पार्ट चल रहा है हमारा, ओके। वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम अनस सर आई एम शेयरिंग इट हियर। वही चीजें शेयर कर रहा हूं मैं, तो लिख लीजिए, हमेशा याद करिए। फादर नाउन है ना भाई, नाम है, उसको हम ऐसे वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम। फादरिंग बोल सकते हैं, फादर्ड बोल सकते हैं। चलिए, वेयर वाज आई? माय बैगेज वाज टिकटेड at the airport. My baggage was ticketed at the airport. और ये was बोलना, was नहीं बोलना। क्या बोलना? was. Next word we have here is image. Image बोलना नहीं है, image. अच्छा, image के 2-3 मीनिंग है। एक तो फोटो है, और एक क्या? आपकी सोसाइटी में इमेज क्या है आपकी, मतलब आपका मकाम क्या है, उसको इमेज बोलते हैं। बैड इमेज, गुड इमेज। अब बाज़ वक्त क्या होता है, बाज़ लोग क्या करते हैं, आपकी इमेज खराब करना चाहते, आपको बदनाम करना चाहते। उसका से इंग्लिश में एक वर्ड है टार्निश। क्या है? टार्निश। तो वो लोग क्या करें, मेरी इमेज को बदनाम कर रहे हैं, मेरी जो पर्सनालिटी, जो शख्सियत है, उसकी क्या करें वो लोग? बदनाम करें। दे आर ट्राइंग टू टार्निश माई इमेज। लेकिन बाज़ वक्त क्या होता, दे प्लान समथिंग, वो प्लान करते कोई भी, तो प्लान उल्टा हो जाता, प्लान उल्टा हो जाता ना भाई, उसको हम इंग्लिश बोलते हैं बैकफायर। क्या बोलते हैं? बैकफायर। Okay, so in one example I'm giving you many words. So okay, so examples are more important than these words. अब आप बोलेंगे प्रोडक्शन होने का क्या पढ़े, बोल तो वो कॉमन वर्ड थे भाई, वो बैगेज पढ़े, इमेज पढ़े, कॉमन वर्ड पढ़े, ऑटोमेटिकली पढ़े, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के वास्ते। ओके, जो एग्जाम्पल्स है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो नए वर्ड्स वहां मिल रहे हैं, उसको यूज करना है। ओके, चलिए। They try to tarnish my image, but their plans backfired. समझे? वो लोग मेरी इमेज को, मेरी शख्सियत को बदनाम करना चाहे, लेकिन उन लोगों के प्लान्स क्या हो गए? उल्टे हो गए। क्या हो गए? उल्टे हो गए। ओके, they try to tarnish my image, but their plans backfired. एनर्जी है ना? 1 घंटा पूरा खाली, आज खाली बोलना है, रिपीटेशन। आप तो सामने आप बोल रहे हैं, जो ऑनलाइन जो तलबा है, आई एम अर्जिंग यू, आप लोग हेडफोन्स लगा लेके अलग बैठ के जोर से रिपीट करना है। खाली देखे तो बेकार है भाई। दिस इज बेसिकली अ प्रोनाउंसिएशन क्लास, ये प्रोनाउंसिएशन क्लास है। अगर आप इसमें खाली बैठेंगे तो फायदा नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज एवरेज। तो तीनों भी एज ही वर्ड है। एवरेज कौन बोले भाई? अभी कोई एवरेज बोले, बेकार हो गया पूरा भाई। एवरेज, एवरेज, ओके। सी, the average male tiger weighs around 200 kg. टाइगर जो रहता, एक मेल फीमेल, तो मेल बड़ा रहता, जाहिर बात है, कभी 300 प्लस भी होता हो, 4 के करीब जाता, लेकिन एवरेज अगर देख